So hello students, in this lecture we will discuss about the next product of vector, that is the vector product of vectors, or again it is called as cross product. In the previous period we have seen the scalar product of vectors in which vector A dot B is equal to, the scalar product of vector means क्या था, product of magnitude of two vectors and the cosine of the angle between them, means A dot B equal to magnitude of vector A into magnitude of vector B into cos of theta, जिसको बोले थे अपन ने ए बी cos of theta। मीन्स यहाँ पर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट लेने के बाद क्या मिल रहा था, स्केलर। इसमें एक बात ध्यान में रखना है कि while writing the dot product or scalar product you have to use the sign that is the dot, okay, you are not using here the sign of multiplication। जहां पर sign of multiplication आ जाएगा वो हो जाएगा कौन सा प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, now we also see the characteristics of that scalar product। now we will discuss here about the vector product of vectors or cross product। So vector product of vector is again a vector. Vector product of vector is again a vector whose magnitude is the product of magnitude of two vectors and sine of the smaller angle between them. Sine of the smaller angle between them, and the direction is given by the unit vector which will be perpendicular to the plane in which these two vectors lies। किस तरह से देखो, for example this is the vector P and this is the vector Q। This is the vector P and this is the vector Q, and angle between them is suppose theta। okay, तो क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या बोलते हैं अपनी, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर इज अगेन अ वेक्टर whose magnitude is the product of magnitude of these two vectors, means P cross Q is equal to product of magnitude of these two vectors, means vector P का magnitude multiplied by vector Q का magnitude into sine of smaller angle between them, sine of smaller angle between them multiplied by unit vector। means यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद में ये जो क्वांटिटी मिल रही है, ये कौन सी क्वांटिटी मिल रही है अपने लिए, वेक्टर, क्योंकि यहाँ पर हमने किससे मल्टीप्लाई किया उसको, यूनिट वेक्टर से। यहाँ पर ऐसा कोई भी प्रकार का यूनिट वेक्टर नहीं था, इससे क्या बोलते हैं इसको अपन ने, this quantity which will be obtained that is the scalar। okay, so the direction देखो magnitude क्या होगा, product of magnitude of these two vectors and sine of the smaller angle between them, ये हो गया उसका magnitude, and the direction is given by the unit vector which is perpendicular, which is perpendicular to the plane, which is perpendicular to the plane in which these two vector lies। means suppose this vector P and this vector Q is in this plane। okay, vector P और vector Q कैसे, in this plane, means like this। suppose this is the vector P and this is the vector Q and we are taking the product of that P with Q। okay, तो इसका जो रिजल्टेंट रहेगा, that resultant will be perpendicular to these two vectors। okay, अब ये perpendicular ऊपर भी रह सकता है नीचे भी रह सकता है, that will be depends upon the direction which will be determined by using the right hand screw rule। डायरेक्शन कैसे डिटरमाइन करना है उसकी अपने को राइट हैंड स्क्रू रूल से। इस पहली बात तो यहाँ पे ध्यान में ले लो कि दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद जो रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा वो कैसा रहेगा, फिर से वेक्टर रहेगा, और उसकी डायरेक्शन कैसी रहेगी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन विच दिस टू वेक्टर लाइज। मींस इस तरह से ये हो गए दो वेक्टर्स अपने लाइक दिस, ये वेक्टर P, ये वेक्टर Q इस प्लेन में दोनों भी, और ये रिजल्टेंट वेक्टर दैट इज वेक्टर P क्रॉस Q, क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर दैट इज द P क्रॉस Q। ओके, अब डायरेक्शन कैसे डिटरमाइन करते बोले अपन ने, राइट हैंड स्क्रू रूल से। कौन से रूल से, राइट हैंड स्क्रू रूल से। सो फॉर दैट होल्ड योर राइट हैंड इन सच अ वे दैट द फिंगर्स आर कर्व्ड। ओके, इफ दिस फिंगर्स shows the direction of product, then this thumb indicate the direction of that unit vector which will be perpendicular to the plane of these two vectors। यहाँ पर देखो अपन कर रहे हैं प्रोडक्ट अभी P क्रॉस Q, कौन सा प्रोडक्ट कर रहे हैं, P क्रॉस Q। ओके, P क्रॉस Q करने के बाद में रिजल्टेंट जो थंब है अपना किसके डायरेक्शन में आ रहा है, इसके क्रॉस आ रहा है कि नहीं आ रहा है,
दिस इज द वेक्टर r इज इक्वल टू व्हाट p क्रॉस q। लेकिन उसके जगह पे q क्रॉस p करते हैं अपन, q क्रॉस p, तो डायरेक्शन कैसे आएगी इसकी, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, दिस इज द q क्रॉस p। ये सादी सी बात है, ऐसा स्क्रू ड्राइवर लेकर अपन एक स्क्रू है, उसको इस डायरेक्शन में घुमाएंगे जिससे टिप ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, और ऐसा घुमाएंगे कहां आएगा, नीचे आएगा टिप। स्क्रू ड्राइवर यूज किया तुमने, स्क्रू ड्राइवर के ऊपर समझ लो स्क्रू लगा हुआ, स्क्रू ड्राइवर को ऐसा घुमा रहा है, तो ये जो स्क्रू है ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, लाइक दिस इज द स्क्रू, ओके। इसके नीचे लगाया आपने स्क्रू ड्राइवर, और इस स्क्रू ड्राइवर को ऐसा घुमा रहे हैं, ये स्क्रू ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, उल्टा घुमाए तो बाहर आएगा, नीचे आएगा। उसी तरह से यहाँ पर p क्रॉस q डायरेक्शन इज इन द डायरेक्शन ऑफ दैट थंब, एंड q क्रॉस p का डायरेक्शन कैसे आएगी, नीचे। इसीलिए क्या बोला है, the vector product of two vectors is again a vector whose magnitude is the product of magnitude of two vectors and the sign of smaller angle between them, and direction is given by the unit vector which is perpendicular to the plane of these two vectors in which these two vectors lie। जिस प्लेन में दो वेक्टर रहते हैं उसके प्लेन को हॉरिजॉन्टल वेक्टर कैसा रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा, ओके। देन फॉर एग्जांपल again, suppose there is a formula which will be based on that cross product, that is force acting on the charge moving with velocity v in a uniform magnetic field will be F equal to qv cross b। Is for example, this is the uniform magnetic field of magnetic induction b, and this is the charge q which will be moving with velocity v in this magnetic field। अब देखो यहाँ पर ये हो गई समझो डायरेक्शन वेलोसिटी की, ये डायरेक्शन है किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की, तो q v क्रॉस b कर रहे हैं अपन, q v क्रॉस b लाइक दिस, ओके। तो ये जो डायरेक्शन है कि फोर्स की कैसे रहेगी, इन द इनवर्ड डायरेक्शन, फोर्स डायरेक्शन कैसे आएगी, इन द इनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो इस तरह से दो वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट करने वाले वेक्टर मिलेगा, और उसकी डायरेक्शन जो रहेगी कैसी रहेगी, जिस प्लेन में दो वेक्टर से जिसका अपन प्रोडक्ट लिए उसके प्लेन को परपेंडिकुलर रहेगा, ठीक है। एक तो वो डायरेक्शन जो है कैसे डिटरमाइन करना है अपने को, राइट हैंड के रूल से हम क्या इंडिकेट करेंगे, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, और एक कर्व फिगर क्या इंडिकेट करेंगे, डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट, ओके। देन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट वेक्टर प्रोडक्ट, जैसा स्केलर प्रोडक्ट एक कम्यूटेटिव था वैसा वेक्टर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं रहेगा। वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव, vector product is not commutative, vector product is not commutative means here a cross b is not equal to b cross a cross b है b cross a के बराबर नहीं रहेगा, क्योंकि जैसे यहाँ पर अपन देखे थे डॉट प्रोडक्ट में a डॉट b इज इक्वल टू क्या मिल जाता b डॉट a, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। क्यों, ये तो मैं आपका एग्जांपल अपना ऑलरेडी लिखा है, p क्रॉस q करते डायरेक्शन का आएगा ऊपर, और q क्रॉस p करते डायरेक्शन कैसे आएगा नीचे। हालांकि मैग्नीट्यूड दोनों का सेम रहेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ b क्रॉस a, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आएगा, पर डायरेक्शन कैसे रहेगी, एक एक से अपोजिट रहेगी। जैसा यहाँ पर इसको मैंने वेक्टर a बोला, इसको वेक्टर b बोल रहे हैं अपन, ये क्या मिल गया अपने को, a क्रॉस b बाय द राइट हैंड रूल, और b क्रॉस a करते इस तरफ, ये क्या हो जाएगा b क्रॉस a, ठीक है। मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड का फार्मूला क्या था अपना, मैग्नीट्यूड ऑफ b मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ थीटा, बट डायरेक्शन कैसी है, एक से अपोजिट है, इसलिए क्या बोलते हैं अपन, वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव, a क्रॉस b इज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a, बट देयर मैग्नीट्यूड्स आर सेम। देन सेकंड वन, vector product obeys the distributive law of multiplication, distributive law of multiplication, जो अपन ने इसके पहले स्केलर में देखे थे उसी तरह से distributive law of multiplication ओबे करेगा। इफ वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b plus c है, we can write it as a क्रॉस b plus a क्रॉस c, जैसा इसमें देखे थे अपन ने वेक्टर a डॉट b प्लस c था, इसको क्या लिखते थे अपन, a डॉट b प्लस वेक्टर a डॉट c।
सेम उसी तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन वेक्टर प्रोडक्ट ओबे करेगा। देन नेक्स्ट वन, magnitude of vector a cross b is equal to a b sin of theta। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a क्रॉस b इक्वल टू a b sin थीटा। यहां पर मैंने यूनिट वेक्टर साथ में नहीं लिया, वो भी मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। इफ दिस थीटा इक्वल टू 0, if theta equal to 0, so this vector a cross b is equal to 0, null vector। क्यों? क्योंकि a क्रॉस b इक्वल टू क्या हो रहा है, a b sin of theta, so a b sin of 0, और sin 0 कितना होता है ऑलरेडी 0, so it becomes what, a b into 0, that is equal to 0। then if theta equal to 180, again this vector a cross b equal to a b sin of 180, but sin of 180 से क्या होता है 0, again it will be 0, means if the two vectors are parallel or anti-parallel to each other, ये हो गया वेक्टर a, ये हो गया वेक्टर b, ये हो गया वेक्टर a, ये हो गया वेक्टर b। if the two vectors are parallel or anti-parallel to each other, their vector product is 0, their vector product is 0। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता था, if the two vectors are perpendicular to each other, then their dot product is 0। देखो दोनों में का डिफरेंस देखो क्या लिख रहा है, यहाँ पे दो वेक्टर्स अगर पैरेलल या एंटी पैरेलल रहेंगे तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा, लेकिन डॉट प्रोडक्ट में दो वेक्टर्स जब परपेंडिकुलर थे तब उनका डॉट प्रोडक्ट क्या था 0 था। सिमिलरली इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, देन vector a cross b is equal to ab sin 90 into unit vector, you बोल सकते हैं, you get it what, ab into unit vector, क्योंकि sin 90 की वैल्यू क्या होती है 1। जब ये वाली कंडीशन फिक्स है, जैसा यहाँ पर ये दो वेक्टर्स अगर एक को परपेंडिकुलर हो गए तो रिजल्ट कुछ तो कुछ भी नहीं अपने को यहाँ पर। ओके, तो जब दो वेक्टर्स पैरेलल या एंटी पैरेलल रहेंगे तब उसका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा, और जब वो परपेंडिकुलर रहेंगे तब वहां पर कुछ ना कुछ वेक्टर अपने को मिलेगा, जो कैसा रहेगा, जैसा ये वेक्टर a, ये वेक्टर b, तो इसका परपेंडिकुलर रिजल्ट इधर आएगा दोनों के प्लेन पे। देन if vector a is equal to vector b, then vector a cross b or vector b cross a cross b or vector a cross a or vector b cross b is equal to 0। अगर वेक्टर a वेक्टर b के बराबर है तो वेक्टर a क्रॉस b और a की वैल्यू b के बराबर है तो a क्रॉस a भी लिख सकते हैं, उसको b क्रॉस b लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू करेंगे ऑलवेज 0। अब इस थोड़ी देर पहले देखे अपन a इक्वल टू b, इसका मतलब दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। ओके, इसलिए a क्रॉस b की वैल्यू क्या रहेगी 0, मींस सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट इज 0, सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट इज 0, मींस i यूनिट वेक्टर i का प्रोडक्ट i के साथ में, यूनिट वेक्टर j का प्रोडक्ट j के साथ में, यूनिट प्रोडक्ट वेक्टर k का प्रोडक्ट k के रूप में क्या रहेगा ऑलवेज 0। i क्रॉस i, j क्रॉस j, k क्रॉस k इक्वल टू 0। ये ध्यान में रखना है, i क्रॉस i, j क्रॉस j, k क्रॉस k इक्वल टू 0, क्योंकि x एक्सिस y एक्सिस, इसके क्रॉस का यूनिट वेक्टर i, इसके क्रॉस का j, तो i क्रॉस i मींस क्या हो गया, इसी का प्रोडक्ट इससे के साथ में, मींस डायरेक्शन दोनों की सेम, एंगल कितना होगा 0, और sin 0 क्या होता है, थोड़ी देर पहले अपने 0, इसलिए क्या होगा i क्रॉस i, j क्रॉस j, k क्रॉस k की वैल्यू 0 रहेगी। लेकिन i क्रॉस j becomes k, j क्रॉस k becomes i, and k cross i is equal to j। i क्रॉस j इक्वल टू k, देखो यहां पे i क्रॉस j के बाहर आएगा इधर, ठीक है, j क्रॉस k, दिस वन j क्रॉस
के, जे क्रॉस के, जे क्रॉस के आ रहा है। तो इस तरह से आई क्रॉस जे क्रॉस के आई, के क्रॉस आई जे, एक सादा से फॉर्मूला नंबर को इसके लिए आगे के आगे क्या बोल रहा है, आगे के आगे मीन्स इस तरह से लिख लेगा आई जे के आई जे, ओके, आई जे के आई जे, जिसको बोला मैंने आई जे के आई जे, ठीक है, आई जे के आई जे लिख लेने का। अब ये तो मालूम है तुमको आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के क्या होता है 0। अब अगर लेफ्ट टू राइट है तुम इधर इस तरफ जा रहे हो तो प्रोडक्ट लेना है पॉजिटिव, जैसा आई क्रॉस जे क्या मिलेगा के क्रॉस आई क्या मिलेगा जे, आ रहा है, और आई क्रॉस जे क्या मिलेगा फिर से के, आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस के आई, के क्रॉस आई जे, आगे देखो फिर से आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस के, जे क्रॉस के आई, आ रहा है, और बाद में के क्रॉस आई क्या आ गया जे। लेकिन अगर रिवर्स आते हो तुम इधर से लाइक दिस, तो जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई माइनस के, क्योंकि इसके उल्टा हो गया, आई क्रॉस जे के हो रहा था, उसके उल्टा मींस क्या होगा उसका नेगेटिव, इसलिए जे क्रॉस आई के, इधर से इधर आ रहे थे, फिर आई क्रॉस के माइनस जे एंड के क्रॉस जे माइनस आई, ठीक है। लेफ्ट टू राइट या तो पॉजिटिव और राइट टू लेफ्ट आता क्या लेना नेगेटिव, क्योंकि अभी थोड़ा देर तुमको फिर से बताने को नाम लेते हैं, जैसा ये हो गया यूनिट वेक्टर आई, ये हो गया यूनिट वेक्टर जे, ये दोनों का रिजल्ट क्या निकलेगा यूनिट वेक्टर के, ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, आई क्रॉस जे आ गया के ऊपर में। लेकिन अगर जे क्रॉस आई करते हैं तुम, जे क्रॉस आई तो क्या आएगा नीचे में आएगा ना, यूनिट वेक्टर इधर जाएगा, लेकिन डायरेक्शन कैसे होगी इसका अपोजिट, इसके क्या होगा माइनस, ठीक है। तो आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के की वैल्यू 0, और बाकी कोई भी प्रोडक्ट रहे उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी। इसके सीक्वेंस ध्यान में रखो कि लेफ्ट टू राइट जाते हो तो पॉजिटिव और राइट टू लेफ्ट आते हो तो नेगेटिव। देन वेक्टर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ द कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स के फॉर्म में क्या होगा वेक्टर प्रोडक्ट देखो, वेक्टर A क्रॉस B इज इक्वल टू AXI प्लस AYJ प्लस AZK क्रॉस BXI प्लस BYJ प्लस BZK, ओके। जैसा अपन ने स्केलर प्रोडक्ट निकाला तो उसी तरह से यहां पर भी निकालना है। पहले इस AXI से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो इट बिकम्स AXI क्रॉस क्या लिखना है क्रॉस BXI प्लस BYJ प्लस BZK प्लस अब AYJ से मल्टीप्लाई करो, AYJ क्रॉस BXI प्लस BYJ प्लस BZK। फिर तीसरा कौन सा बचा अपना AZK क्रॉस BXI प्लस BYJ प्लस BZK। हर एक टर्म से इस टर्म से हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करो। पहला क्या होगा देखो, AXI क्रॉस BXI मींस I क्रॉस I AX BX, समझ में आया। पहले यूनिट वेक्टर का प्रोडक्ट लिख रहा हूं मैं, I क्रॉस I AX BX प्लस इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे I क्रॉस J AX BY प्लस I क्रॉस K, ओके, AXI क्रॉस BZK, ये क्या हो जाएगा I क्रॉस K AX BZ प्लस अब इससे मल्टीप्लाई करो क्या आएगा J क्रॉस I
आई ए वाई बी एक्स प्लस इससे इसको जे क्रॉस जे ए वाई बी वाई प्लस इसी टर्म से इसको क्या आएगा जे क्रॉस के ए वाई बी जेड। देन फिर से आगे बढ़ो तीसरी प्लस ए जेड के बी एक्स आई क्या होगा के क्रॉस आई ए जेड बी एक्स प्लस इससे इसको के क्रॉस जे ए जेड बी वाई फिर से इसको लास्ट वाले को क्या आएगा प्लस के क्रॉस के ए जेड बी जेड। ओके, अभी थोड़ी देर पहले बता दूं मैंने आई क्रॉस आई जे क्रॉस जे के क्रॉस के इसकी वैल्यू क्या होती है 0 और आई जे के आई जे इधर से आते समय पॉजिटिव इधर से आते समय नेगेटिव। ये फॉर्मूला अप्लाई करना देखो यहाँ पर पहली क्वांटिटी क्या है आई क्रॉस आई देखा आई क्रॉस आई कितना होता है अपना 0 इसे पूरी की पूरी टर्म क्या हो गई 0। ओके, फिर आई क्रॉस जे क्या होता है क्रॉस जे आई क्रॉस जे क्या मिलेगा के आई क्रॉस जे क्या होगा के क्या बचा ए एक्स बी वाई दिस इज ए एक्स बी वाई और आई क्रॉस जे की वैल्यू कितनी होती है के प्लस आई क्रॉस के आई क्रॉस के आई क्रॉस के क्या लिखना पड़ेगा प्लस या माइनस दैट इज माइनस जे होगा इसका बचा यहाँ पर ए एक्स बी जेड मल्टीप्लाइड बाय माइनस जे जिससे प्लस साइन क्या हो जाएगा माइनस। देन कम टू दिस वन जे क्रॉस आई फिर से जे क्रॉस आई रिवर्स आ रहा है क्या आएगा माइनस के जे क्रॉस आई माइनस के इज ए वाई बी एक्स माइनस ए वाई बी एक्स के। देन जे क्रॉस जे 0 है प्लस 0 तीसरी टर्म क्या है जे क्रॉस के इधर जा रहा है इसका आएगा आई मीन्स प्लस ए वाई बी जेड आई। देन के क्रॉस आई क्या आएगा प्लस जे मीन्स ए जेड बी एक्स इंटू के। देन के क्रॉस जे मीन्स माइनस आई और साथ में क्या है ए जेड बी वाई आई और लास्ट क्या है के क्रॉस के दैट इज अगेन 0। ओके, देन यहां से देखो अभी आई वाली टर्म्स कॉमन निकलता हूं मैं यहाँ का आई दिख रहा है और कहाँ का आई दिख रहा है दिस वन है तो क्या होगा आई कॉमन सो इन ब्रैकेट ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई। देखो यहां से आई कॉमन निकाला और यहां से आई कॉमन निकाला मैंने तो क्या हो जाएगा आई कॉमन निकाले तो ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई। देन ये दो टर्म में से कॉमन निकाल लिया अपन ने। अब जी वाली टर्म देखो कहाँ है जी वाली टर्म दिस इज ए एक्स बी जेड यहाँ जी आएगा सब हाँ जे कॉमन निकालो सो प्लस जे या माइनस जे इधर भी चलेगा प्लस जे लो प्लस जे क्या है यहाँ पर माइनस ए एक्स बी जेड प्लस ए जेड बी एक्स हो गया। ये जे वाली भी हो गई बची के वाली प्लस के से ए एक्स बी वाई
माइनस ए वाई बी एक्स। Okay, so this is the vector A cross B is equal to I A y B z minus A z B y plus J A z B x minus A x B z plus K A x B y minus A y dx. So we can write this in terms of determinant also. इसी को अपन डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। इस तरह से देखो, वेक्टर A क्रॉस B इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड डिटरमिनेंट I J K। पहले डिटरमिनेंट ले लेंगे कौन I J K। फिर वेक्टर A के कंपोनेंट्स कौन से हैं ax ay az, ax ay az। वेक्टर b के कंपोनेंट्स कौन से हैं dx dy dz। अभी डिटरमिनेंट सॉल्व अगर तुम करते हो तो फिर से एक क्वेश्चन मिलेगा, देखो मिलता है, देख लो कैसे सॉल्व करें। डिटरमिनेंट तुमको मालूम है, पहले लेते हैं अपन फर्स्ट रो में का फर्स्ट लेटर ले लेता हूं, ये वाली ये कॉलम और इस रो को छोड़ देते हैं, इसका क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, बराबर है। a y b z minus a z b y, alright, a y b z minus a z b y, a y b z minus a z b y plus j। अब j रो में कब क्या होता है, इस j को कॉलम को छोड़कर ये रो को छोड़ते हैं अपन, इस समय रॉन्ग साइड से मल्टीप्लिकेशन मींस a z b y minus a x b z। फिर लेंगे k, ये कॉलम पर ये छूट जाएगी, प्लस k क्या आएगा a x b y माइनस a y b x। हो गया। देखो ये वाला सॉल्यूशन देखो और ये देखो, दोनों कैसे सेम है। तो इस तरह से डिटरमिनेंट से इसको सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर तुमको दिया है, एक बार दिया प्रॉब्लम, वेक्टर a क्रॉस b निकालना है। वेक्टर a की वैल्यू है twice I plus j minus twice k and vector b equal to twice I minus twice j plus twice k। फाइंड आउट a क्रॉस b। इतना लंबा चौड़ा प्रोडक्ट करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट वेक्टर a क्रॉस b इज इक्वल टू डिटरमिनेंट का I J K। ओके, फिर वेक्टर a के कंपोनेंट्स कौन से हैं यहाँ पर 2, यहाँ पे b इसका मतलब 1 और ये -2। b के कंपोनेंट्स कौन थे 3 -2 +2। जैसा यहाँ पे सॉल्व कर यू विल गेट दिस a क्रॉस b। ठीक है, फिर से लास्ट कैरेक्टरिस्टिक इसका ऐसा है, द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स इज इक्वल टू द एरिया of the parallelogram। Magnitude of the vector product of two vectors is equal to the area of the parallelogram। For example, this is the vector P, this is the vector Q। Okay, angle between them is theta। Draw the perpendicular from this on that vector P, from this point P। Okay, so here vector P क्रॉस Q की वैल्यू निकालना है अपने को, मैग्नीट्यूड इसका क्या निकालना है मैग्नीट्यूड। सो दिस इज द पैरेललोग्राम, बन गया पैरेललोग्राम वाला A B C D। दिस इज द पैरेललोग्राम, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया अपन, ये हो गया 90। देन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू क्या होता है बेस इनटू हाइट। होता है क्या, बेस कितना है इसका ए बी इनटू हाइट इन कौन था, सपोज दिस पॉइंट इज ई डी। ये वेक्टर पी पूरा यहां से ए से बी तक के पूरा वेक्टर पी है। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू वेक्टर
साइड बेस कितना है AB, जिसके क्रॉस क्या लिया अपन ने वेक्टर P, ओके, मल्टीप्लाइड बाय ED मींस इसकी वैल्यू, अब ED कैसे निकलेगा, इस ट्रायंगल AED की से sin थीटा निकालो, कितना का sin थीटा, फ्रॉम ट्रायंगल AED sin theta is equal to opposite side upon hypotenuse, means ED upon that is AD, जिसके क्रॉस है वेक्टर Q, जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा Q, means here ED equal to Q into sin of theta. So therefore area of that parallelogram, this one, is equal to P into Q sin of theta. है कि नहीं, इस AD की वैल्यू आपको पता है, अपन ने मैग्नीट्यूड बात कर रहे हैं अपन तो Q sin of theta, means area of this parallelogram is equal to क्या होगा PQ sin of theta, and this is nothing but the magnitude of that P cross Q, that is PQ sin of theta. Okay, so these are the characteristics of that vector product of the vector. Okay, thank you.